आज है हमारा डे 5। कोशिश। हाँ जी। आप कोशिश करो कि ना एक उसमें ही पूरा हो जाया करे। बिल्डिंग योर है ना। सेल्फ esteem. Today you learn more about loving yourself with respect, gratitude, and the realization that your mind, body, and soul are miracles to be appreciated. How did you feel when you woke up this morning? Did you smile when you looked into the mirror and said, I love you, darling, I really love you? Are you starting to believe it? After just a few days of mirror work, you may see that it has already started making a difference in your life. You may be smiling a little more today. You may be feeling much better when you look into the mirror and see your beautiful faces. You may be feeling much better about yourself. Are you beginning to love and approve of a person you see in the mirror? हो रहा है? You can feel the love for your own self. कर पा रहे हो आप फील? मैं बताऊं, मैं सच्ची बताऊं, आजकल ना अभी जैसे मेरे कान की प्रॉब्लम चल रही है ना, तो मुझे सोते उठते एक ही बात दिमाग में होती है। हाय ठीक हो जाए, अब ये ठीक हो जाए। हो तो गया मुझे है। और चीजें कम ध्यान आती हैं। अगर मैंने पाठ करना है वो भी कान के लिए करना है, कुछ अफर्मेशंस देनी है वो भी कान के लिए देनी है। वो सब चल रहा है। आप हो जाए नहीं बोलने की जगह अब आप बोलना थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। हो गया मेरा है। कान एकदम हाँ ठीक हो जी। गया। हाँ जी, आप हो चुका एक्सेप्ट है। है कि वो ऑलरेडी ठीक हो चुका है। हम्म। उसमें से वो हाई वाला वो हटा दो कि हाई वो ठीक हो जाए। जाए नहीं, हो हाँ चुका जी। है, ऑलरेडी हाँ ठीक जी। है। थैंक यू कर दो गॉड को पहले से। हाँ, मैं थैंक्स भी करती हूँ उस काम के लिए कि ये हो चुका है। हाँ। Love is the great miracle cure. Loving ourselves work miracles in our life. I have discovered that no matter what the problem is, the best way to resolve it is to start loving yourself. Loving yourself means having great respect for everything about you, inside and outside. It is deep gratitude for the miracle of your body, your mind, and your soul. अभी जैसे आप ना एक मैजिक बुक वाली जो मैजिक बुक है वो भी ले सकते हो। उसमें भी ना एक चैप्टर है फिजिकल बॉडी के लिए भी, कि अगर आपके एक बॉडी पार्ट में अगर पेन है तो आप अगर बाकी सारे जो ऑर्गन, बाकी पूरा जो सिस्टम आपका ठीक चल रहा है ना, आप उसको ग्रेटिट्यूड करो। तो जो सही नहीं चल रहा, आपकी एनर्जी ग्रेटिट्यूड वाली तरफ ज्यादा जाएगी ना, तो प्रॉब्लम वाली तरफ कम जाएगी। आपका पूरा फोकस अगर प्रॉब्लम की तरफ जाएगा तो वो और बढ़ेगी। आप उल्टा कर रहे हो। आपको यहाँ पे उससे फोकस हटा के बाकी जो पूरी बॉडी है जो सही फंक्शन कर रही है, बाकी सारी चीजें, उसको उस पे फोकस डाल के वहां ग्रेटिट्यूड डालना है। ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। इस पे से फोकस बिल्कुल हटा लो। इस पे आप कुछ भी मत डालो। बस लव ठीक है। डालना, या जो मेडिटेशन में आप व्हाइट लाइट डालना और उस पे हीलिंग लाइट और लव लाइट डालो। अदरवाइज कुछ भी मत सोचो उसके बारे में, अपने आप ठीक हो जाएगा वो। Loving yourself means having a great respect for everything about you. It is possible to really love yourself unless you have self approval. मैजिक बुक जो मैं बता रही हूँ ना, उसमें सबसे बड़ी जो पावर है ना वो है ग्रेटिट्यूड की। हम जिस भी चीज के लिए हम्म। ग्रेटफुल रहते हैं ना, तो यूनिवर्स हमें और मौका देता है ग्रेटफुल होने के। तो जो चीज सही नहीं है वहां फोकस हटा दो। बाकी जो चीजें पूरी बॉडी में सही हैं उस पे फोकस डाल दो। तो it's impossible to really love yourself unless you have self approval and self acceptance. Do you scroll and criticize yourself endlessly? Do you believe you are unlovable? Do you live in chaos and disorders? Do you attract lovers, mates who betitle you? Do you mistreat your body with unhealthy food choices and stressful thoughts? If you deny your good in any way, it is an act of not loving yourself. I remember a woman I worked with who wore contact lenses. When she did her mirror work, she began to realize an old fear from her childhood.
In a few days, she complained that her contact lenses were bothered her to the point that she couldn't wear them anymore. When she took them out, she looked around and found that her eyesight was almost perfectly clear. Still, she spent the entire day saying, "I don't believe it, I don't believe it." That was her affirmation. The next day, she was back to wearing her contacts. She wouldn't allow herself to believe she had created perfect eyesight, and her disbelief was confirmed. The universe gave her exactly what she asked. This is how powerful our thoughts are. हम जो भी थॉट क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज और रियलिटी। अब लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। अब वो भी तो ये जो बोलना भी कि वो काम नहीं करता, वो भी तो काम ही कर रहा है। लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये भी काम कर रहा है कि वो काम नहीं करता है, तो वो नहीं कर रहा है। आप जो सोच रहे हो वही हो रहा है। अगर आप सोचोगे कि काम करता है तो करता है, तो फिर आपको उस तरीके की चीजें दिखाई देंगी कि हाँ वो करता है। Think how perfect you were when you were a tiny baby. Babies do not have to do anything to become perfect. They already are perfect. They act as they if they know it. They know they are center of the universe. They are not afraid to ask for what they want. They freely express their emotion. You know when a baby is angry. In fact, the whole mother neighborhood knows. You also know when babies are happy. Their smile light up the room. They are full of love. Tiny babies will die if they do not get love. Once we are older, we learn to live without love or try to, but babies will not stand for it. Babies love every part of their body. Like हम अपने पूरे बॉडी को ना इस तरीके से देखें कि वी आर लाइक अ बेबी। अब जैसे बहुत लोग कोशिश करते हैं कि मैं पतली हो जाऊं, लाइक वांट टू लूज वेट, बट वो खाना भी अगर खा रहे हैं ना तो वो इस तरीके से खा रहे हैं कि मैं मोटी ना हो जाऊं, मैं मोटी ना हो जाऊं। अब वो जिस थॉट से खाना खा रहे हैं ना, वो वही हो रहा है कि वो और मोटे हो रहे हैं। चाहे वो पानी भी पिएंगे ना तो उनको पानी भी लग जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा जानती हूँ जो कहते हैं कि हम हमें तो हवा भी लग जाती है, हम डाइट पे रहते हैं तब भी हम मोटे हो जाते हैं। और कुछ लोग इतने थिन होते हैं, वो भर भर के खाते हैं तब भी उन पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो ये सोच के नहीं खा रहे कि मैं इतना खा जाऊं खाऊंगा या खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। आप जो थॉट से खा रहे हैं ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइक मैं सब कुछ खाती हूँ, तेल वाला भी, तला मला सब कुछ खाती हूँ, लेकिन अब राइट चॉइस जरूर मैं लेती हूँ कि मैं क्या डाल रही हूँ अपनी बॉडी में, अनहाइजीनिक या नॉन वेज, या किस वाइब्रेशन का है, या किस किस एनर्जी से सामने वाले ने दिया है मुझे। कि अगर वो कर्ज करके या बड़े गंदे उससे किसी ने मुझे दिया खाने के लिए कि बस देना है खाना बना के, लाइक मदर, अगर मदर जिस दिन मैं गुस्से में या अच्छे भाव से खाना नहीं बनाती, वो कुछ अच्छा नहीं बनता चाहे मैं उसमें कुछ भी डाल लूं। लेकिन अगर मैं अच्छे दिल से बना रही हूँ मंत्रा चैंट करके और बड़े पॉजिटिव मेडिटेशन करके, तो सिर्फ नमक मिर्च भी डालूंगी वो अच्छा बन जाएगा। तो इट्स अबाउट योर थॉट। आप किस भाव से खा रहे हो। अगर आप अपनी बॉडी को आपको अगर वेट लॉस करना है तो इसलिए नहीं करना कि लोगों के को खुश करने के लिए, लोग आपको देख के कॉम्प्लीमेंट करें। आपको अपनी फिटनेस, अपनी आप की बॉडी, जो 4 पिलर्स हैं हमारे, उसमें से एक फिजिकल बॉडी फिटनेस है। उस पिलर पे काम करना है क्योंकि वो आपको अपने लिए करना है। और अपने को कम समझ के नहीं कि मेरे को इसलिए पतला होना है ताकि लोग मुझे वैलिडेट करें कि मैं सुंदर हूँ। आपको अपनी फिटनेस के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। You were like that one time. We were all like that. Then we began to listen to adults around us who have learned to be fearful. We began to deny our own magnificence. Today, put all criticism, negative self talk aside. Let go out of old mindset and one that betrays you and resist change. Release other person's opinion of you. आज की जो अफर्मेशन है, आई एम गुड इनफ, आई एम वर्थ लविंग, आई एम गुड इनफ, ये मैं शेयर भी कर दूंगी आपको।
I am worth loving. Mirror work exercise. Stand in front of the bathroom mirror, look into your eyes, and say this affirmation: I love and approve of myself. I love and approve of myself. Keep saying it over and over. I love and approve myself. सेम वे हमें दिन में 100 टाइम्स ये अफर्मेशन बोलनी है. Each time you pass a mirror and see your reflection, repeat this affirmation 100 times. This is an exercise I have given to hundreds and hundreds of people over the year. The results are absolute phenomenon. When people stick with it, remember mirror work doesn't work in theory. It works only in practice. If you do it, it really make a difference. If any negative thoughts come up, such as how can I approve of myself when I am fat, आ सकता है ऐसा कि जब हम देख रहे हैं खुद को और बहुत टाइम तक मुझे अपनी स्माइल अच्छी नहीं लगती थी, और वही मेरे को सामने किसी ने ये बोला भी था कि कैसे टेढ़े मेढ़े दांत हैं, जहां मर्जी जाके खड़े हो गए. लाइक वन कॉम्प्लीमेंट, वो मुझे ऐसा मेरे दिमाग में अटक गया था कि मेरे को बहुत टाइम तक अपनी स्माइल पसंद नहीं थी. लेकिन मैंने जब से ये मिरर एक्सरसाइज करी, और मैंने हमेशा अपनी स्माइल को लेके शीशे में बोला, वाह यार ज्योति क्या तेरी स्माइल है, वाह यार ज्योति तेरी स्माइल कितनी अच्छी है. और ट्रस्ट मी, ये मेरा अपना खुद का प्रैक्टिकल प्रूफ है. मुझे आज जितने भी लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो यही कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपकी स्माइल कितनी प्यारी है. और जबकि मेरे को खुद को मेरी स्माइल पसंद ही नहीं थी. और मैं बाद में अब ये सोचती हूँ, यार इतनी प्यारी तो स्माइल है, कुछ तो बुराई नहीं थी, पर मेरा शायद वो नजरिया ही वो था. अब देखती हूँ हम्म। मैं वही ज्योति हूँ, वही मेरे दांत है, वही मेरी स्माइल है. अभी क्या बदल गया? कुछ भी नहीं बदला. सिर्फ मेरा नजरिया बदला खुद को देखने का. सेम वे मुझे अपने बालों के लिए लगता था. मैं आज अपने बालों को देख के ऐसे बोलती हूँ, वाह यार कितना ब्यूटीफुल मेरे, आई एम लव माई हेयर, आई लव माई हेयर. तो लोग सामने से मुझे बोलते हैं. अभी पीछे एक सेशन में लाइव में किसी ने बोला कि आपके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं. तो उसी दिन मैंने रात को अफर्मेशन ये वाली करी थी कि आई लव माई हेयर, मतलब ऐसे ही शीशे में खड़े होके मैं ऐसे ऐसे कर रही थी. और सुबह अगले ही दिन उन्होंने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट कर दिया. तो ये एक्चुअली काम करता है. और जब सामने आप, योर इनर वर्ड इज योर आउटर रिफ्लेक्शन. जब आप मिरर करोगे ना, आप ये ट्राई एक्सपेरिमेंट करना, आज कुछ भी चीज को लेके आप बोलोगे, कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट करना अपने आप को, अपनी आंखों को लेके, अपने बालों को, आईज को, किसी भी चीज को लेके, स्माइल को देखने, कल कोई ना कोई आएगा और आपको वही बात भूल के चला जाएगा. ये मेरे साथ बहुत बार होता है ऐसा. हाउ कैन आई अप्रूव माई सेल्फ? सिली टू थिंक दैट आई कैन थिंक दिस वे, और आई एम नो नॉट गुड. Doesn't resist them. Don't fight them. Don't judge them. Let them just be there. Stay focused on what you really want to experience, which is to love and approve of yourself. You can gently let go of other thoughts that indulge and stay focused on I love myself and approve myself. माइंड ना बीच में खेलने का काम करेगा, माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा कि यार इतनी मोटी तो है, या जो भी चीज को आप पसंद नहीं कर रहे हो, तो माइंड को कि एक तरीके से रीवायर्ड है. उसका डाटा वही कह रहा है कि फैट तू मोटी है और वो तू अच्छी नहीं है. तो वो अपना ही वो बार बार वही बीच में लेके आएगा. अब उसको नया थॉट देने में टाइम लग रहा है. माइंड का अपना कोई माइंड नहीं होता, दिमाग का अपना कोई दिमाग नहीं है. दिमाग को हम चला रहे हैं. तो अभी तक दिमाग हम हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है. अब हम दिमाग को के साथ खेलेंगे. हम उससे रीवायरिंग ऐसा कर देंगे कि भाई मैं तो सुंदर हूँ, मैं जैसी हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ. तो वो ना बीच में अपनी थॉट डालना बंद कर देगा, जो
पुरानी प्रोग्रामिंग है। वो धीरे 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 वो प्रोग्रामिंग ही रीप्रोग्राम हो जाएगी। वो डाटा डिलीट हो जाएगा और नया प्रोग्राम शुरू हो जाएगा कि मैं जो हूँ जैसी हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। अब आई एक्सेप्ट माई सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि मैं हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। मैं मैं अपने आप को बेटर करने के लिए कुछ करूंगी। मैं हेल्दी डाइट भी लूंगी, मैं फिटनेस एक्सरसाइज भी करूंगी, वॉक करूंगी, लेकिन मैं पहले खुद को एक्सेप्ट करूंगी। वही सेम फ्रीक्वेंसी चार्ट एक्सेप्टेंस। उसके बाद आउट ऑफ लव कर रही हूँ, मैं आउट ऑफ फियर नहीं कर रही हूँ, आउट ऑफ एंगर नहीं कर रही हूँ, आउट ऑफ शेम नहीं कर रही हूँ, आउट ऑफ गिल्ट नहीं कर रही हूँ, लोअर फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट नहीं कर रही हूँ। सब कुछ के बाद आउट ऑफ लव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करके मैं खुद को प्यार करती हूँ, इसलिए कर रही हूँ। फिर वो लगेगा भी, आपको पता भी चलेगा कि हाँ, आप एक्सेप्ट तो कर रहे हो पहले खुद को। उसके बाद है द पावर इज विद इन यू। डे 5 जनरल एक्सरसाइज, जर्नलिंग एक्सरसाइज। राइट डाउन सम ऑफ द वेज यू डोंट लव योर सेल्फ, द वेज यू एक्सप्रेस योर लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। डू यू क्रिटिसाइज योर बॉडी? डू यू टॉक डाउन टू योर सेल्फ? लाइक मुझे बहुत टाइम तक अपनी ऑनेस्टी के लिए, कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मेरे को इस चीज के लिए बहुत रिग्रेट होता था। क्योंकि कॉर्पोरेट में काम किया है मैंने, मैनिपुलेशंस चलती हैं, या मेरे अंदर मैं फेक नहीं कर पाती हूँ। तो मैं fake हो पाती थी जगहों पे। मुझसे लोग चालाकियां करके या मैनिपुलेशंस करके, मीठा मीठा बन के, लोग मतलब मेरे से अच्छा प्रूव हो जाते थे। और क्योंकि मैं ब्लंट हूँ, मैं फेक नहीं कर पाती थी, तो मेरे को ना बहुत टाइम ऐसा गुस्सा रहता था कि यार, वो लोग अच्छे हैं जो मन में चोर रहे, मन में गलत रख रहे हैं, लेकिन ऊपर से अच्छा दिखा के लोग अपना पॉइंट बना लेते हैं, और मैं कर नहीं पाती थी। लाइक विद बॉस, विद इन लॉज, या विद सोसाइटी। अब वो मेरे को इस चीज का ना बहुत टाइम तक अपने ऊपर गुस्सा आता था कि इतना ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरे को थोड़ी बहुत चालाकियां आनी चाहिए। बट आज की डेट में आई कैन फील दैट एज माई मोस्ट मोस्ट पावरफुल टूल टू बी अ ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक पर्सन। आई कैन प्राउड फॉर दैट, कि मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी नीयत खराब नहीं हुई, मैं डिसऑनेस्ट नहीं हुई हूँ। मेरी ऑनेस्टी आज मेरी पावर है, मेरी वीकनेस नहीं है। तो मुझे आज रिग्रेट नहीं होता। उसी बात को लेके मैंने वही परसेप्शन चेंज किया है। मैं वही हूँ, वही थी और वही रहूंगी। बट शायद इसीलिए वो जो ईगो होती है या प्राउड आता है, वो नहीं आ रहा। शायद वही हम्बलनेस बनी रहेगी अगर मैं अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रहूंगी। जहां मेरे को फेक करना पड़ा, शायद मेरी ईगो आ जाएगी। स्पिरिचुअल ईगो भी आ सकती है, मनी ईगो भी आ सकती है, फेम ईगो भी आ सकती है, कोई भी ईगो आ सकती है। लेकिन अगर मैं ऑथेंटिक बनी रहूंगी, जो मैं टू द कोर हूँ, तो मैं शायद हम्बल रहूंगी और ग्राउंडेड रहूंगी। तो मुझे अलग से उसके लिए काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। मुझे फेक नहीं होना है किसी भी चीज के लिए। तो मैं ऐसी ही हूँ। आज मुझे प्राउड होता है इस चीज के लिए, बट बहुत टाइम तक मुझे रिग्रेट था। इवन मुझे मेरी मेल ने बोल दिया था, दीदी आप इतने अच्छे हो, लोग आपका फायदा उठाते हैं और आप फिर भी चेंज नहीं होते। तो मैंने कहा यार, अच्छे अच्छे लोगों की वजह से शायद दुनिया चल रही है, और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ, मुझे नहीं बदलना है। So write down some of the negative opinions you think about others have of you. For each of these negative opinion, write down an affirmation to turn it to positive statement. आपके लिए कुछ लोगों की नेगेटिव ओपिनियन हो सकती है। लाइक फॉर मी, मैं बागी हूँ मेरे घर के लिए, मेरी फैमिली के लिए। मैं लीड से हटके काम करती हूँ, मैं जिद्दी हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। तो यहाँ पे यू कुड चेंज, माई मदर थिंक्स आई एम फैट एंड फैट टू आई एम अ ब्यूटीफुल एग्जैक्ट एज आई एम। अब यहाँ पे जो भी परसेप्शन लोगों की है आपके लिए, वहां पर भी आप चेंज करो कि मैं चाहे फैट हूं, स्टिल आई एम ब्यूटीफुल, या जो भी आपके अराउंड लोग आपको बोलते हैं। जैसे मुझे हम्म। लोग बोलते हैं कि
जिद्दी बहुत है, या अ, सुनती नहीं है किसी की, या इगोइस्टिक है बहुत ज्यादा। अब वो मैं हूं जो हूं, अब ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपनी जिद को सही दिशा में लेके जाती हूँ। किसी भी काम को पूरा करने के लिए वो जिद बहुत जरूरी है। तो उसको शेम में ले जाने की जगह कि मैं जिद्दी हूँ, मैं आज उसको पॉजिटिव जिद समझती हूँ। ये जिद ही है कि मैं कोई भी काम को उठाती हूँ और मैं उसको पूरा कर पाती हूँ, मैं मंथली गोल पूरे कर पाती हूँ, या मैं अकेले सारी चीजें कर पाती हूँ। तो मैंने उस परसेप्शन को चेंज किया। तो आप देखो कि आपके लिए ऐसा क्या, लोग आपके बारे में ऐसा क्या सोचते हैं, वहां से उसको चेंज करो। क्योंकि आप, जो लोग आपको बता रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोचते हो, इसलिए लोग आपको वही बात बता रहे हैं। Make a list of all the reason why you love yourself. Make another list of why people love to spend time with you. अब आप अपने बारे में क्या अच्छा समझते हैं, और लोग आपके बारे में, आपके साथ बैठने में क्या अच्छा समझते हैं। मेरे मुझे ये पता है कि अगर मैं किसी से भी बात करूंगी, मैं उसके अंदर तक उसको फील कर पाती हूँ। आई एम एम्पैथ। तो मैं उसके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। मेरा हार्ट उससे कनेक्ट हो पाता है। और आई एम श्योर कि सामने वाला भी मेरे मेरे से दिल से कनेक्ट हो पाता है। तो मैं दिल से दिल कनेक्शन बना पाती हूँ। तो वो स्ट्रेंथ है। जबकि एक टाइम पे मुझे वो वीकनेस लगती थी कि लोग, मैंने एक बाउंड्री, बहुत स्ट्रांग बाउंड्री भी बना ली थी कि मैं किसी को अपने दिल तक आने ही नहीं दूंगी, क्योंकि जो दिल तक आता है वही मेरा दिल तोड़ के चला जाता है। तो मैंने वो बैरियर बना दिया था, मेरा हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक हो गया था कि अब वो एंट्री कोई पार ही नहीं कर पाएगा, वो बाउंड्री अब कोई पार नहीं कर पाएगा। बट फिर मेरे को समझ में आया कि उससे कोई फायदा नहीं है। मैंने वापस अपना हार्ट चक्र की हीलिंग करी, 7 चक्रास की हीलिंग करी, और वो लेट गो करके अपने आप को वापस से प्यार करना शुरू करा। और ना, मैं आई अट्रैक्ट वही वाले लोग जो मुझे प्यार करते हैं अनकंडीशनली, और जिनको मैं प्यार करती हूँ अनकंडीशनली। आप सब लोग मेरे लिए अनकंडीशनल लव है ना, मैं आपसे कुछ ले रही हूँ ना आप मुझसे कुछ ले रहे हो, स्टिल वी हैव अ अंदर डीप लव है एक दूसरे के लिए, हम समझ पाते हैं एक दूसरे को। तो इट्स अ ब्लेसिंग। कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, स्टिल एक प्यार है। तो वो प्यार, वो हार्ट चक्र ओपन करके ही आ पाएगा। पोस्ट दिस लविंग लिस्ट वेयर यू कैन सी देम एवरी डे। Heart, your heart thought day 5. Can you imagine how wonderful it would be if you could live your life without ever being criticized by anyone? Wouldn't it be wonderful to feel totally at ease, totally comfortable? You would get up in the morning and know you are going to have a wonderful day because everybody would love you, nobody would put you down, you would feel just great. You know what? You can give this to yourself. You can make the experience of living with yourself the most wonderful experience imaginable. You can wake up in the morning and feel the joy of spending another day with you. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो ना, तो जो लो वाइब्रेशन के लोग होंगे ना, वो वैसे भी आपसे छूट जाएंगे। वो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी वजह से लड़ाई होगी, कुछ तो ऐसा होगा, या कुछ भी नहीं होगा, रैंडमली आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। उनको होल्ड नहीं करना है, लेट देम गो। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अब हाई कॉन्शियस में जा रही है। आपको किसी से गुस्सा नहीं है, उन लोगों से कोई रिग्रेट नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई ग्रजेस नहीं है, लव है, वो आप उनको दूर से प्यार ही दोगे। लेकिन अब उनके साथ बैठने के लिए, उनके साथ होने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशन को नीचे लाना लाना आप नहीं कर पाओगे। आप बैठ ही नहीं पाओगे। अब जो लोग मेरे एक्स फ्रेंड्स होते थे, जो मतलब नॉन वेज भी खा रहे हैं, अल्कोहल हो रहा है, ड्रिंक्स हो रही हैं, पार्टी हो रही है, मैं मेरी वाइब्रेशन अब नहीं मैच होती वहां पे। मैं अब हाई वाइब्रेशन लोग, हाई वाइब्रेशन फूड, हाई वाइब्रेशन प्लेस,
मैं इसी जगह पे ही बैठ पाती हूँ। मुझे पिरामिड में बिठा दो, मुझे मेडिटेटर्स के साथ बिठा दो, मेरे को चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे लेविश लाइफ ना मिले, लेकिन अगर पॉजिटिव लोग हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, वो मेरे को जमता है, तो मैं अब उनके लिए नीचे नहीं गिर पाती हूँ। तो जब मैं आंख खोलती हूँ तो मेरे अराउंड वही लोग होते हैं। लाइक हमारी कम्युनिटी में मॉर्निंग से ही मैं ग्रेटिट्यूड डालती हूँ। मुझे पता है मेरे पास वही सब लोग हैं जो सुबह यही कुछ कर रहे होंगे। उनकी मॉर्निंग न्यूज चैनल से शुरू नहीं हो रही होगी, वो ग्रेटिट्यूड मोड से ही शुरू करेंगे और रात तक वो ग्रेटिट्यूड मोड में ही होंगे। मैं पर्सनली सबको मुझे पता है वो कौन कौन है। तो आप उन्हीं लोगों के साथ अपनी लाइफ को शुरू करोगे, वही लाइफ आप जी रहे होगे। तो आज की अफर्मेशन है फॉर सेल्फ एस्टीम, डे 5 ऑफ ऑडियो। आई एम टोटली एडिक्वेट फॉर ऑल सिचुएशंस। ये ना मैं अभी ऑडियो करके सेंड भी कर देती हूँ और फोटो क्लिक करके भी भेज देती हूँ आपको। आई चूज टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ। आई एम वर्दी ऑफ माई। मैं जब बोल रही हूँ ना, एक काम करो, अलका जी आप लिखो मत, जस्ट क्लोज योर आइज। प्रीति जी इफ यू कैन जस्ट क्लोज योर आइज, मैं बोल रही हूँ, जस्ट फील दिस इमोशन। आई एम टोटली एडुकेट फॉर ऑल सिचुएशंस। मैं हर एक सिचुएशन के लिए एकदम एकदम परफेक्ट हूँ। टेक अ डीप ब्रेथ इन, इनहेल, एक्सेल। अपने हार्ट चक्र में एक ग्रीन लाइट को महसूस करें। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। नाउ आई चूज टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने आप को बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आई एम वर्दी ऑफ माई ओन लव। मैं अपने ही प्रेम के लिए अपने आप को वर्दी समझती हूँ। आई स्टैंड ऑन माई ओन फीट। मैं अपने खुद के पैरों पे खड़ी हूँ। आई एक्सेप्ट एंड यूज माई ओन पावर। मैं अपने अंदर की पावर को महसूस कर पा रही हूँ। इट्स सेफ फॉर मी टू स्पीक अप फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए बोल पाती हूँ। आई एम लव्ड एंड एक्सेप्टेड एग्जैक्टली एज आई एम, राइट हेयर राइट नाउ। मैं आज से, अभी से अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। अगर आप चाहो तो अपने आप को हग करके भी ये अफर्मेशंस कर सकते हो। जस्ट फील योर ओन सेल्फ। My self-esteem is high because I honor who I am. मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम को बहुत हाई रखती हूँ क्योंकि मैं अपनी खुद की वैल्यू करती हूँ। My life gets more fabulous every day. I look forward to what each new hours bring. मैं बहुत बहुत फैबुलस रोज अपने आप को एक नई ऊर्जा से भरती हूँ। एक नए आसमान को छूने के लिए मैं तैयार होती हूँ। मैं आगे बढ़ने के लिए हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक मोमेंट में अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जो हूँ, जैसी हूँ। आई एम नीदर टू लिटिल नॉर टू मच। आई डू नॉट हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू एनीवन। ना मैं ज्यादा हूँ, ना मैं कम हूँ। मैं एकदम परमात्मा का बनाया हुआ एकदम परफेक्ट पीस हूँ। मुझे किसी को कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है।
Life supports me in every possible way. पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात, डिवाइन एक एक पल मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और हर पल वो मेरे साथ है। मैं हर पल एक डिवाइन की गाइडेंस में आगे बढ़ रही हूँ। वो डिवाइन मेरे ही अपने अंदर हैं, मेरे ही परमात्मा, मेरे अंश मेरे ही अंदर वास करते हैं। मैं उन्हीं का ही एक रूप हूँ। लाइफ सपोर्ट्स मी इन एवरी पॉसिबल वे। मेरी जिंदगी में जो कुछ, जहां जब जो हेल्प चाहिए, यूनिवर्स मुझे वो हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। My consciousness is filled with loving, positive, healthy thoughts that are reflected in my experience. मेरे कॉन्शियस में लव, पॉजिटिविटी, हेल्थ, abundance, जॉय, हैप्पीनेस, मैं सब कुछ पाने के लिए सक्षम हूँ। मैं हर एक चीज की हकदार हूँ, हर एक चीज डिजर्व करती हूँ। The greatest gift I can give myself is unconditional love. I love myself exactly as I am. I no longer wait to be perfect in order to love myself. मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है किसी और का प्रेम पाने के लिए। जो मेरा है वो अपने आप मेरे पास आ जाएगा, और जो मुझसे प्यार नहीं करते हैं वो अपने आप मेरे ऑरा से चले जाएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, रिलीज ऑल द अनवांटेड ओल्ड बिलीव पैटर्न्स। अपने लिए जो भी लिमिटेड लिमिटेड बिलीव पैटर्न्स आपने अपने लिए रखे हैं, जस्ट रिलीज, रिलीज, रिलीज। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, रिलीज, रिलीज, रिलीज। ओवरवेलमिंग हो गया मेरे लिए। आई कैन फील मी। अपने आप को महसूस करना, इट्स लाइक मैजिकल। जब आप खुद के अंदर, अपने अंदर जब लाइट को देख पाते हो, थैंक यू, तो लाइक आप अपने ही अंदर से ना एक लाइट, एक अंदर से ऊर्जा निकलते हुए महसूस करते हो। तो अभी जैसे आपने अपने आप को हग किया, फील किया, कैसा कैसा महसूस हुआ? अलका जी, वी हैव 4 मिनट्स। हाँ जी। अच्छा लगता है जब हम अपने बारे में सोचते हैं, कुछ अपने लिए करते हैं, अच्छा लगता है। और ये जो छोटी सी मेडिटेशन थी, इसके बाद बड़ा हल्का फील हो रहा है कुछ अंदर, है ना, और ऐसे। देखो, कुछ भी नहीं, मतलब लाइक फॉर द 2 मिनट्स, हमने सिर्फ दो हम्म। मिनट के लिए आंख बंद करके, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने आप को महसूस किया है। बहुत लंबा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है कि हमें घंटों कुछ करना है। लाइक फॉर द 2 मिनट्स अगर हम अपने आप को सिर्फ माइंड को रीप्रोग्राम कर दे, और एवरी डे हम ये कर रहे हैं, तो सोचो आप कितना पावरफुल होगा। अगर इतने सालों में हमने नेगेटिव बोल बोल के अपनी कंडीशनिंग ऐसी करी है, तो सिर्फ 2 मिनट दिन के दे के अगर हम उसको बेटर कर सकते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये एक्सरसाइज करना। मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग अच्छे से करके मैं उसमें भी डाल दूंगी ग्रुप में। आप आराम से बैठ के भी और फील करना है इसको। आज मैं पक्का इसको करूंगी। प्रीति जी, आप कर पाए? आई डोंट नो शी कैन आंसर और नॉट। आई थिंक वो ऑफिस के साथ ही है। चलो। I was just listening, but I did it in my mind. ओके। I अब was listening. Yeah. I will share recordings. You just sit, Okay. whenever you have time, just sit and feel your own self. Just do these Okay. affirmations. Okay. Can you मुझे send तो, me though? yeah, I will send in the group.
Okay, thank you. You are in a community, na? I'll share there only. सबको मिल जाएगा। तो like, मुझे 2 मिनट में ऐसा फील हुआ जैसे मैं एकदम से बाहर आ मैं मेरे साथ जुड़ गई हूँ। और सेकंड्स में एकदम से आई गेट कनेक्टेड टू माई सेल्फ। तो वो क्योंकि अब मेरी वो लेयर मैं उतार चुकी हूँ तो वो मिनट लगता है करने में, बट इट्स प्रोसेस। अभी हो सकता है आपको उतना डीप फील नहीं हुआ लेकिन हुआ। लेकिन आप देखना अभी जब भेजूंगी आप रात को सोते हुए उसको जब करके सोओगे ना, चाहे उसको लूप पे चला के छोड़ दो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना डाटा सेव होता जाएगा। वो आपको ऐसा लगेगा लाइक मैं कोशिश करती हूँ, मैंने एक ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको लूप पे ही बनवा देती हूँ ताकि वो आपका चलता रहे। वो लूप पे चलती रहेगी, वो ठीक है। कॉन्शियस में जाता जाएगा। मैं अभी वो रिकॉर्ड करके एडिटिंग के लिए डाल देती हूँ, वो लूप पे चलाओ, तो ये भर जाएगा आपके अंदर ये अफर्मेशंस। और ट्रस्ट मी, जब आप लाइक इवन अगर आप कोई गाना सुनते हो और वो गाना आपने गुनगुनाया तो होता है ना पूरा दिन वो गाना ही मुंह पे चलता रहता है। कहीं सुन लिया वो छोटा सा आपने ट्रैक सुना था उसके बाद वो चले ही जा रहा है पूरा दिन। लाइक आज मैं सुबह से एक पता नहीं कौन सा गाना गाए जा रही हूँ, वो चल ही रहा है। वो वाला पवन करे शोर। मेरी मेड आई है, मैं उससे भी गाना गा रही हूँ, कह रही है शोर नहीं दीदी शोर। तो हम वो मस्ती कर रहे थे। तो वो आज पूरा दिन वो लूप पे चला है गाना, मतलब बैक एंड पे भी मैं बैठी हुई हूँ और मेरे गाना चल रहा है। तो अगर वो गाना हमारे माइंड को इतना पावरफुली अटक सकता है, तो व्हाई नॉट अपने खुद के लिए अच्छे थॉट्स। तो मैं अभी भेजती हूँ, अब हमारे पास लास्ट 1 मिनट है। और प्लीज ग्रुप में शेयर करो ताकि और लोग आए, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है। ये एक्सरसाइज मुझे लगता है ये सबको करनी चाहिए। ये ऐसी चीज है कि लाइक ये स्कूलों में सिखा दो। मैं तो कह रही हूँ बचपन से ही ना ये लोगों टेक्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर डाल दो। एक ये बुक तो हर स्कूल में मैंडेटरी हो जानी चाहिए, ये मिरर वर्क वाली।